सर आपकी वॉइस नहीं आ रही सर। यस बेटा, आवाज आवाज आई है? यस सर। यस सर। यस सर। थैंक यू बेटा। यस सर। ओके ओके। So remember, the resistance of the conductor is depend on more than 4 or 5 things. First, number of mass of electrons, number of electrons, electronic charge, transition time, length and area. किसी भी कंडक्टर में R की वैल्यू उसकी लेंथ पर डिपेंड करेगी, उसके एरिया पर डिपेंड करेगी, उसके मास पर, इलेक्ट्रॉन्स पर, उसके चार्ज पर और रेजिस्टेंस टाइम पर। मगर ध्यान दो, इसमें एक खास बात है, ये अलग है और ये दोनों अलग हैं। ये अलग क्यों है? क्यों? बिकॉज वी कैन चेंज द लेंथ, we can change the area of the conductor, okay, but we can't change the mass of electrons, number of free electrons, किस मटेरियल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमें नहीं पता, वो तो फिक्स होते हैं, उसका चार्ज फिक्स है, we can't change। उनके बीच में जो टक्कर है, you can't manage the time of this collision। So there is two types of things, something they can manage by us, that is length and area, at the same time mass, electronic charge, number of electrons and time, it is not a change by us, that means these are the specific thing, so they are especially special which shows the resistivity और specific resistance, जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अभी यहाँ पर आप एक नोट लिखिए जरा, resistance of the conductor, the resistance of the conductor, please note down, the resistance of the conductor is directly proportional to the length of it, that is R proportional to L। नंबर 2 लिखिएगा, resistance of the conductor is inversely proportional to the cross section area of the conductor, cross section area of the conductor, that is R proportional to 1/A। Third
Third, resistance of the conductor is depend on its nature of material. It depend its nature of material. प्यारे बच्चों, ये सब हम लोग यहाँ से देख के लिख रहे हैं. लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, और ये उसका नेचर है. ओके, कंबाइनिंग बोथ, सो V are proportional to L upon A, और R is equal to rho L upon A. रो L upon A. ये रो बड़ा ऐसा बनता है, थोड़ा तिरछा बनेगा ऐसा. E को थोड़ा तिरछा कर देना. R is equal to rho L upon A. Here, rho is called specific resistance or resistivity of the material. Specific resistance or resistivity of the material. And ये बेटा आपने पहले लिख चुके हैं. इस दोनों से यदि आप करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा रो कितना हो जाएगा अपने को, m अपॉन n e स्क्वायर टो. रो इज इक्वल टू m अपॉन n e स्क्वायर टो. ये आ जाएगा. अब देखिए, ये लिखा है बेटा R इज इक्वल टू रो L अपॉन A. R is equal to rho L upon A if L is equal to 1 and A is equal to 1. If L is equal to 1, A is equal to 1, तो R is equal to rho. बच्चों, इसके आधार पर आप में से कोई इसकी डेफिनेशन मुझे बता पाएगा रेसिस्टिविटी की on the behalf of this thing? Yes, anyone? नहीं आता तो बेटा ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसको ठीक तो मैं करवा दूंगा. Sir, the unit length of the conductor is directly proportional to its cross section area. हाँ ठीक है, तो और उसको अच्छा करने की कोशिश करोगे, और देखो उसमें कुछ ठीक कर सकते हो क्या? रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू रेसिस्टेंस. कब? जब लेंथ 1 हो और एरिया 1 हो. या ये बोल दो, अच्छा A इंटू L क्या होता है बेटा? वॉल्यूम. एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम. या हम ये बोलते हैं कि उसका वॉल्यूम 1 हो. मीनिंग ये हुआ कि किसी भी यूनिट वॉल्यूम का जो कंडक्टर है, ध्यान देना बेटा, कोई भी एक यूनिट वॉल्यूम का एक कंडक्टर है, उसका जो रेसिस्टेंस होता है, इट इज इक्वल टू द रेसिस्टिविटी. इट इज इक्वल टू द रेसिस्टिविटी. ये है इसकी सही डेफिनेशन. तो लिखिएगा, कैसे लिखोगे इसको? रेसिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल, resistivity of a material is numerically equal to the resistance, is numerically equal to the resistance of an object in the
in the form of a unit cube and made of this material अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी? इट्स यूनिट इज ओम मीटर। वेरी गुड, ओम मीटर। कैसे आ गई ये लेंथ की? मीटर स्क्वायर से काट दिया, ओम मीटर हो गया। वेरी गुड, वेरी नाइस। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात को समझना। important thing is that resistivity is related to the nature of material and resistance of the not only depend on nature but also its shape and size। इसको समझो कैसे इसका मतलब है। प्यारे बच्चों, suppose this is the copper rod, okay? This is copper rod, okay? So it has some resistance as well as resistivity also. Clear? Now I cut this part from this rod. So now what is the change in resistance and resistivity? Tell me answer. Resistance increase, resistivity remains same. Yes, very nice. इसकी ये कुछ हिस्सा हटने से बेटा इसका रेसिस्टेंस चेंज हो गया। वी कांट से दैट इट इज इंक्रीज और डिक्रीज, नहीं पता, आइडिया नहीं है क्योंकि जो अलग शेप का है ना इसलिए, बट चेंज, बट इट्स रेसिस्टिविटी रिमेन्स सेम। अच्छा, इसकी कितनी होगी रेसिस्टिविटी? इसकी कंडक्टर की Same as rod. यस। प्यारे बच्चों ध्यान देना, इन दोनों की रेसिस्टिविटी तो सेम होगी मगर उनका रेसिस्टेंस अलग अलग होगा। व्हाई? बिकॉज दे आर ऑफ द सेम मटेरियल। ये दोनों सेम मटेरियल के हैं। जैसे कि ये आपके पास एक कॉपर वायर है, ये आपके पास एक कॉपर शीट है, एक ये आपके पास कॉपर शीट है। पता है आपको इन तीनों में एक चीज कॉमन है। वो क्या कॉमन है? कि तीनों की रेसिस्टिविटी सेम होगी। क्यों होगी? बिकॉज रेसिस्टिविटी इज ओनली डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, बिकॉज बोथ ऑल थ्री are from the same material, made from same materials. That is why the resistivity of three objects will be same, but resistance not only depend on the nature of material but also their dimensions, that is length and area. So because the length and area of all these three are different, so we can say that the resistance of three conductor are डिफरेंट। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि दो या दो से ज्यादा कोई मटेरियल है वो एक ही उसके उनका मटेरियल सेम है, दैट मींस उनकी रेसिस्टिविटी सेम रहेगी बट उनका रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकता है। ध्यान देना पहली बात। सपोज आपके पास दो कंडक्टर हैं, ये दिस इज made of copper and this is made of aluminium। तो इन दोनों का रेसिस्टेंस हो सकता है कि सेम हो बच्चों, बट इनकी रेसिस्टिविटी कभी भी सेम नहीं होगी। व्हाई? बिकॉज
they are made from different materials. That means इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग होंगे, इसके अंदर अलग होंगे, इसमें रिलेक्सेशन टाइम अलग होगा, इसमें अलग होगा. That means समझ में आ गया आपको बच्चों कि दो different materials may be having same resistance but they do not have same resistivity. ठीक, ऐसे ही दो सेम मटेरियल हैं तो उनका रेसिस्टेंस अलग हो सकता है मगर उनकी रेसिस्टिविटी कभी भी अलग अलग नहीं होगी. इसको याद रखिए. ओके, सो दिस इज, सो नाउ क्लियर दैट द रेसिस्टिविटी इज डिपेंड ऑन दिस. वापस से आइए, कहाँ आइए, इस फार्मूले पे आइए, एम एन ई स्क्वायर टो. बच्चों m फिक्स है, n फिक्स है, e फिक्स है, केवल टो बचा. टो जो होता है ये कभी कभी कम ज्यादा हो सकता है. अब टो कम हो गया तो रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगी और रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगी तो रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा. राइट? सो नाउ द क्वेश्चन इज on what condition the resistivity will increase or decrease. So this is basically depend on the temperature. It is perfectly depend on the temperature or amount of heat. When you give the some amount of heat to the conductors, so what happen? They get excited, electrons get excited and they move very fast, and after some interval of time they strike to the other one and the speed becomes zero. क्या होगा कि जैसे आपने इसको एनर्जी दी ना हीट से, तो ये क्या होता है कि फिर जल्दी जल्दी आपस में टकराते हैं. तो जल्दी से टकराएंगे तो क्या हो जाएगा, इनका तो का टाइम कम हो जाएगा. जब टाइम कम हो जाएगा बच्चों तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा कि रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगी. रेसिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा. सो इन सिंपल वर्ड यू कैन से दैट यदि हम कंडक्टर को गर्म करते हैं, यदि हम किसी कंडक्टर को गर्म करते हैं या ये बहुत देर तक गर्म होता रहता है तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है. आपने शायद कभी नोट किया हो, आजकल पहले बहुत होता था कि यदि कोई भी आपका कोई अप्लायंसेज है यदि बहुत देर तक चल रहा है तो एकदम वो काम करना बंद कर देता था. जैसे सपोज करो कि आपका जो घर में फैन लगा हुआ है, यदि आप उस फैन को लगातार 10-20 दिन तक चला दो बिना रुके हुए तो वो खराब हो जाएगा. क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसमें से लगातार जब करंट पास होगा तो धीमे धीमे वो गर्म होगा. जब गर्म होगा तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट और कम आएगा और कम आएगा और कम आएगा और धीमे धीमे एक ऐसी स्थिति आ जाएगी उसमें से करंट पास होना बंद हो जाएगा और वो आपका जो फैन है, जो भी आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, वो काम करना बंद कर देता है. इसलिए ऐसा कहा जाता है कि यदि हम किसी भी अप्लायंस को बहुत देर तक काम कर रहे हो तो थोड़ा सा उसको रेस्ट देना चाहिए जिससे वो अपनी एनर्जी को फिर से रीगेन और रीस्टोर कर सकता है. सो रिमेंबर ऑलवेज रेसिस्टिविटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर और रेसिस्टेंस डिपेंड करता है रेसिस्टिविटी पर. सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन द टेम्परेचर. यानी कि अब आप समझ जाइएगा कि यदि आपने किसी वायर की लेंथ को बढ़ाया कम किया, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा. एरिया को कम ज्यादा करोगे हो जाएगा. और यदि आप उसको गर्म करते हो, यदि आप उसको गर्म भी करते हो तो भी उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है. आपने ध्यान देना बेटा कि जैसे कि अभी हम लोग आपको आगे पढ़ाएंगे सेमीकंडक्टर वगैरह, जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं, जो लैपटॉप्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक जो भी अप्लायंस होते हैं, इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये एसी में अच्छे ढंग से काम करते हैं. राइट? इसमें वो है ना, ऐसा कहते हैं कि कंप्यूटर वगैरह इसलिए हमेशा कंप्यूटर लैब में एसी लगा होता है. क्यों? जिससे कि वो उनके टेम्परेचर को मैनेज कर सके. नहीं तो क्या होगा कि उनके काम करने की क्वालिटी
गिर जाती है। ओके, सो दिस इज द बेसिक रीजन बिहाइंड दैट। तो हमेशा चूंकि इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस होते हैं वो बहुत ज्यादा डेलिकेट होते हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो उनके लिए हमको अधिक की जरूरत पड़ती है। सपोज करें कि आप किसी लैपटॉप को लेकर के धूप में बैठ जाइए मई के महीने में, तो आप यकीन मानना वो 10-20 या ऑफ हो जाएगा वो। लेकिन यदि आप उसी लैपटॉप को एक लेके जाते हैं और ठंडक में काम करते हैं तो उसके काम करने की जो ड्यूरेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। सो दिस इज द बेसिक रीजन these things. Okay, सर डाउट, yes, सर एक डाउट था। हाँ बोलो। सर फिर तो ऐसे तो एब्सोल्यूट जीरो पे रेजिस्टिविटी जीरो होनी चाहिए, क्या रेजिस्टेंस बात जीरो है, होनी चाहिए। तुमने मुझे आने नहीं दिया ना, इसकी पहले मुझे रोक दिया। बिल्कुल सही कह रहा है कि if the absolute we get absolute zero temperature, so in that condition resistance will become zero, and this is the condition of superconductor. This is the superconductor. Yes, यदि ऐसा हो जाता है तो हमको आज तक की तारीख में हमारे पास सुपर कंडक्टर नहीं है, हम उसको लाना चाहते हैं, बट इसके लिए हमको रेजिस्टेंस को जीरो, सॉरी टेम्परेचर को जीरो करना पड़ेगा, बट इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। दैट इज व्हाई वी डू नॉट हैव सुपर कंडक्टर। ओके, बिल्कुल सही बात है। सर पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि वहां तक पहुंचने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करना बंद कर देते हैं बेटा। वो एक ऐसी स्थिति होती है कि पहले कम करोगे तो फायदा हुआ, और इसके बाद एक समय के बाद फिर वो आपको नुकसान होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना आपसे कहूँ कि आप धूप में हैं तो आपको क्या लगेगा, मुझे बताओ। चलो, धूप में आप खड़े तो आपको कैसा लगेगा? गरम लगेगा। गर्म लगेगा, बिल्कुल सही बात है। धीमे धीमे आपको है मतलब मालूम क्या है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा हीट जो आपको धूप से मिल रही है, राइट? तो आपको वो हो गया। अब आप वहां से चले गए एक ठंडक में, एसी में चले जाओ, तो आप बड़ा अच्छा महसूस करते हो। कब तक? कब तक? थोड़ी जब देर। तक कि मतलब आपका टेम्परेचर 30 है, 27 है, 21 है, ओके, कूल, 18 और कूल। लेकिन जब वो टेम्परेचर 4, 3, 2, 1 और 0 की तरफ आता है तो फिर क्या होता है? फिर आपके हाथ पैर काम करना बंद करते हैं और आपका जो ब्लड है वो जमने लगता है। तो जो चीज पहले आपको फायदा कर रही थी वही अब आपको नुकसान करने लगती है। सो दिस happens same is this happen in the conductor कि क्या होता है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे आकर के कोई भी जो इसकी मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है बेटा वो जीरो हो जाती है, और जब वो जीरो हो जाएगी तो डेफिनेटली करंट पास नहीं होगा। ठीक है ना? दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट। ओके, now we discuss two things. It is just opposite of just a minute, conductor और रेसिस्टर। एक होता है बेटा रेसिस्टेंस, इसका उल्टा होता है, उसको हम बोलते हैं सॉरी माफ करना, कंडक्टेंस। और एक होती है रेसिस्टिविटी, उसकी उल्टी होती है कंडक्टिविटी। सो टुडेज फर्स्ट टॉपिक इज कंडक्टेंस। देखिए बेटा, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस कंडक्टेंस single word definition बेटा, the reciprocal of conductor, sorry, the reciprocal of resistance of the conductor, the reciprocal of
The reciprocal of resistance of the conductor is called conductance. Is called conductance. And it is denoted by G, capital G. So G is equal to 1 upon R. G is equal to 1 upon R. प्यारे बच्चों, तो इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी ओम इनवर्स, राइट? Its unit is ohm inverse. Why inverse? Because the unit of resistance is ohm. या तो बेटा इसको आप ले सकते हो ओम इनवर्स, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो मो, MHO, जस्ट उल्टा कर दो, MHO, मो। इसकी एक यूनिट और होती है, उसे हम बोलते हैं सीमेन, SIEMEN, सीमेन या सेमेन, कोई बोल सकते हो आप। ये था आपका कंडक्टेंस। अब लिखिए कंडक्टिविटी। Conductivity. It is also same. Conductivity of the material is the reciprocal of resistivity. Conductivity of the material is reciprocal of resistivity. That is ये सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। प्यारे बच्चों, इसका सिंबल भी उल्टे होता है, देखो इसका जैसे उल्टा है, यदि रो को उल्टा कर दोगे तो उसको बोलते हैं सिग्मा, यदि आप उसको उल्टा कर दोगे तो सिग्मा बन जाएगा। सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होती है ओम पर मीटर, ये ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, क्योंकि इसकी होती है ओम मीटर। या आप इसको ऐसे भी ले सकते हो MHO पर मीटर, MHO और MHO और पर मीटर। यहाँ बेटा एक नोट लगा के लिखना, बेटा नोट लगा देना और फिर लिखना conductivity of the conductor is depend on the nature of the material and temperature of the material. Nature of the material and temperature of the material. आगे देखिए, ये एक ग्राफ है जो आप लोगों को आना चाहिए। यहाँ पर आप लिखेंगे टेम्परेचर, तो यहाँ आ जाएगी ये कंडक्टिविटी, और ये जो ग्राफ बनता है ये कुछ ऐसा बनेगा।
देखो बेटा, दिखाई दे रहा है, समझ में आ गया आपको? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा कंडक्टिविटी कम होगी। लेकिन ध्यान देना बेटा, ये जीरो नहीं होगा ये कभी भी। तो जीरो पर ये मतलब ये जो है यहाँ पर आकर के कैसा हो गया, इसके पैरेलल हो जाएगा। दैट मीन्स कभी भी हो नहीं पाएगा। दैट मीन्स ये पॉसिबल नहीं है कि ये जीरो हो जाए, और यदि ये जीरो नहीं होगा तो ये भी कभी इनफाइनाइट नहीं हो सकती। यानी कि आप ये मान लो कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर, आइडियली एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर रेसिस्टेंस बिकम्स जीरो एंड कंडक्टिविटी बिकम्स इनफाइनाइट। ओके, सो दैट इज द कंडक्टिविटी एंड टेम्परेचर। ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। यस आदित्य, कुछ पूछना है? नहीं सर। छोटी सी चीज और भी है, थोड़ा सा टाइम ऊपर जाएगा तो थोड़ा ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है। एक बेटा हेडिंग डाल दो, माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। We know that I is equal to the NEAVD। ये आप जानते हो, इसको मानो इक्वेशन फर्स्ट। फिर लिखना बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD इज इक्वल टू होता है, ये भी पता है आपको, E तो अपॉन M। Hence I is equal to NEA into EE तो अपॉन M। ये इसमें से हम बहुत कुछ पहले कर चुके हैं बेटा, इसलिए इसको ज्यादा बोल नहीं करेंगे। ये कितना आ जाएगा अपने को, NE स्क्वायर A E तो अपॉन M। ठीक, और A को यहां दिया होगा तो I अपॉन A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन ई स्क्वायर ई तो अपॉन एम। प्यारे बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है? डेंसिटी, करंट डेंसिटी लिख दो बेटा, बट जे नहीं ऐसे समझना, लिखो बट करंट डेंसिटी जे इज इक्वल टू होता है आई अपॉन ए एंड एम अपॉन एन ई स्क्वायर तो इज इक्वल टू होता है रो। ये अभी हमने आज ही पढ़ा है अभी। यस, एम एन ई स्क्वायर तो इज इक्वल टू रो। चाहो तो आगे लिख देना बेटा रेसिस्टिविटी। ये क्या है इसकी रेसिस्टिविटी है। सब्स्टिट्यूट these two value in above equation, so we have J is equal to E upon rho। क्या आ गया, J is equal to E upon rho। बट सिग्मा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन रो, अभी हम पढ़ चुके हैं 2 मिनट पहले ही। So finally we have J is equal to sigma E। J is equal to sigma E। बच्चों ध्यान रखना, J यहाँ पे क्या है लिख दो, दैट इज करंट डेंसिटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इन वर्ड्स में लिख लो बेटा, क्या लिखोगे, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू
conductivity into electric field. जैसे बच्चों V इज इक्वल टू आई आर, ये ओम्स लॉ है, एक मैक्रो लेवल पर है, इसको बोलते हैं हम लोग माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ. तो आगे लिखिएगा, दिस इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ. दिस इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ. यस बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? सो यू कैन आस्क मी, है ना?